عدالتیں ڈاکومنٹس واقعاتی شہادتیں اور جو ایویڈنس کولیبریٹ کر کے ان کو ڈاکومنٹس کی شکل میں دی جاتی ہے اس سے کوئی ہٹ کے فیصلہ کرتی ہیں. عدالتیں ہمیشہ اکارڈنگ ٹو ڈاکومنٹ جاتی ہیں. الیکشن سے پہلے انتخابی اتحاد بھی ہوں گے, لوگ جماعتیں تبدیل بھی کریں گے, اور پی ٹی آئی چونکہ آج کل زیر عتاب ہے, ویسے تو کسی کو خوش نہیں ہونا چاہیے لیکن سیاسی اتار چڑھاؤ تو آتا رہتا ہے, اور میں آج بھنور میں ہوں تو کوئی خوشگوار نہ رہے. السلام علیکم ناظرین, ایڈیٹوریلزم کے اسپیشل پروگرام کے ساتھ میں ہوں بسمہ عنایہ. ہر روز کی طرح آج پھر بات کریں گے آج کی ٹاپ سٹوریز پر, اور ہم اس پہ تجزیہ لیں گے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار نعیم مصطفیٰ صاحب. تو سب سے پہلے ٹاپ سٹوری کی طرف آتے ہیں. وہ یہ ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں فرد جرم کی جو کارروائی تھی اس کو چیلنج کر دیا, اور موقف یہ اختیار کیا گیا ہے کہ جو کیس کی کاپی ہے اس کی تقسیم کے 7 دن بعد ہی فرد جرم عائد ہو سکتی ہے. سر سے پوچھیں گے کہ کیا یہ فیصلہ غیر قانونی تھا, اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتا دیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس پہنچا ہے تو کیا پی ٹی آئی کو ریلیف ملے گا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کے سربراہ کے خلاف جو مقدمات ہیں نا جی خاصے ہیں, وہ سول کورٹ سے لے کے اور سیشن سے لے کے اور سپریم کورٹ تک چل رہے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ قانونی نکات جو ہے یہ تو ماہرین قانون ہی بتا سکتے ہیں, لیکن اس حد تک مثالیں موجود ہیں کہ آپ نے چارج شیٹ ہوا اور چارج شیٹ کے فوری بعد جو ہے نا آپ نے گواہان طلب کیے فرد جرم سے انکار کی شکل. اگر فرد جرم سے کوئی ملزم انکار کرے تو وہ فوری طور پہ گواہان طلب کرتے اور ان کو نوٹسز کی کاپی دی جائیں گی. یہ انہوں نے قبل از وقت کیا ہے, یہ چیلنج بنتا نہیں تھا ان کا. اگر انہوں نے اب چیلنج کر دیا ہے تو اب عدالت دیکھتے ہیں اس میں کیا فیصلہ کرتی ہے. لیکن ایک بات بڑی ضروری ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے بارے میں یہ تاثر ہے, تاثر کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے, کہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ٹلٹ ان کا جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کی طرف ہے. یہ لوگ ناقدین جو ہے نا, یہ ناقدین جو ہے نا وہ الزام لگا پی ٹی آئی کے مخالفین سمجھ لیں آپ. سر اس میں یہ بات بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ نون لیگ کو بھی تو ادھر سے ریلیف مل رہا ہے. اچھا نون لیگ کے بارے میں بھی اچھا یہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آج جو حکومت میں پارٹی ہے وہ کل حزب اختلاف میں آئے گی تو اس کے حوالے سے تاثر مل جائے گا. جب یہ حکومت میں تھے مسلم لیگ نون والے اتحادی جماعت حکومت تھی تو اس وقت یہ تاثر تھا کہ جی ان کے اگینسٹ جا رہی ہیں عدالتیں. سپریم کورٹ رات کو 12 بجے کھل جاتی ہے, اتوار کی چھٹی کے دن جو ہے وہ عمران خان کے مقدمات سنے جاتے ہیں, تو یہ ایک تاثر قائم ہو جاتا ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ عدالتیں ڈاکومنٹس واقعاتی شہادتیں اور جو ایویڈنس کولیبریٹ کر کے ان کو ڈاکومنٹس کی شکل میں دی جاتی ہے اس سے کوئی ہٹ کے فیصلہ کرتی ہیں. عدالتیں ہمیشہ اکارڈنگ ٹو ڈاکومنٹ جاتی ہیں, اور یہ اگر ان کا موقف درست ہو گیا پھر تاثر ختم ہو جائے گا. اگر ان کی پٹیشن دیکھیں نا, اصل بات یہ ہے کہ میرے حق میں عدالت فیصلہ دے تو بہت اچھا ہے, اور اگر میرے مخالف آپ کے حق میں دے دے تو میں اس پہ تنقید کرتا ہوں. یہ تاثر ختم ہونا چاہیے. سر اسی کے ساتھ ساتھ جو دوسری بڑی خبر ہم نے آج دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ مراد سعید علی امین گنڈا پور اور بھی 10 کوئی پی ٹی آئی جو کارکنان ہیں ان پہ دائمی گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیے گئے ہیں کہ انہوں نے کورٹ میں حاضر نہیں ہوئے ہیں. جہاں بھی دیکھیں گے یہ پارٹی کے اوپر کوئی ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے یہ ذرا بتا دیں. پاکستان تحریک انصاف 9 مئی کے بعد پرٹیکولر, اس سے پہلے بھی تھا حکومت جب سے ان کی ختم ہوئی تھی, لیکن 9 مئی کے بعد پرٹیکولرلی نا یہ شکست و ریخت کا شکار ہے. اور شکار اس انداز سے ہے کہ بہت سے رہنما پارٹی تبدیل کر رہے ہیں, نئی پارٹیاں بن رہی ہیں. استحکام پاکستان پارٹی مثال ہے, تحریک انصاف پارلیمنٹری مثال ہے. یہ 2 جماعتیں جو انہوں نے پی ٹی آئی کی کوکھ سے جنم لیا ہے, یہ اس طرح نئی جماعتیں بن رہی ہیں. کچھ نئے لوگ مختلف جماعتوں میں شامل ہوئے ہیں. ابھی 3-4 خواتین جو کل بڑی نامور خواتین ہیں. اس کے علاوہ بڑی خبر آ رہی ہے کہ محمد اسلم آبرو جو پی ٹی آئی کے تھے وہ پی 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 میں شامل ہو چکے ہیں. یہ اب بہت ساری جو ہے نا یہ معاملات اس لیے ہیں کہ یہ اصل میں نے کل پرسوں آپ کے اس پروگرام میں عرض کیا تھا کہ آپ صرف یہ دیکھیں کہ یہ الیکشن سے پہلے انتخابی اتحاد بھی ہوں گے, لوگ جماعتیں تبدیل بھی کریں گے, اور پی ٹی آئی چونکہ آج کل زیر عتاب ہے, ویسے تو کسی کو خوش نہیں ہونا چاہیے لیکن سیاسی اتار چڑھاؤ تو آتا رہتا ہے. اور میں آج بھنور میں ہوں تو کوئی خوشگوار نہ رہے ہے نا, اسے خوشگوار نہیں رہنا چاہیے. ہاں چراغ سب کے بجھیں گے, ہوا کسی کی نہیں. اب یہ ہوا ہے, اور یہ ہوا جو ہے نا کسی کی مستقل نہیں ہے. آج کسی کے حق میں تو کل کسی کی مخالفت میں ہو سکتی ہے. تو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو ہوا چل رہی ہے وہ تو پی ٹی آئی کے خلاف ہے, اور پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے چھوڑ کے باقی جماعتوں میں جا رہے ہیں. مسلم لیگ نون میں اس کی میں نے کل کہا تھا کل کے پروگرام میں کہ نون میں ان کی جگہ نہیں ہے. وہ ہم نے بڑی
तफसीली अब गुफ्तगू ये की थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, इवन पीटीआई जो पार्लियामेंटेरियन है, या JUI जमात इस्लामी, ये मुख्तलिफ जमातें हैं, जी। उनमें लोग जाएंगे। सर अभी हवाओं की बात हो रही है तो एक बड़ी मजे की बात कर लेते हैं यहाँ पर कि नून लीग जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी एक्टिव इस वक्त नजर आ रही है। अगर तारीखी हवाले से देखा जाए तो वो बड़ा प्रो पीटीआई सूबा समझा जाता है। आपको लगता है कि इस वक्त अदम मौजूदगी है पीटीआई की वहाँ पर, तो ये वोट बैंक को तब्दील कर लेंगे, कुछ ऐसा कोई सूरत हाल हो रही? देखें, एक बात तो बड़ी अच्छी है, खुशाइंद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2 मरतबा इक़्तिदार में आई जी, ये कंसेक्टिव 2 इक़्तिदार मिले उनको, जी। बहुत कम जमातों को 2 बिल तरतीब जो है ना ऊपर चले। जी, खैबर पख्तूनख्वा में 2 दफ़ा ये आए। एक दफ़ा जब ये आए तो परवेज़ खटक वज़ीर आला बने, दूसरी बार आए तो महमूद खान साहब बने। ठीक है। इन दोनों अदवार में और बाद में तो वज़ीर दिफा भी रहे। अब देखिए ना, अब महमूद खान के बनने के बाद तो वज़ीर दिफा बन गए परवेज़ खटक साहब। परवेज़ खटक साहब ने वहाँ अपनी नई जमात का ऐलान कर दिया, डिसेंडेंट हो गए, इमरान खान साहब से बगावत कर दी। और वो ये कहते हैं कि मैं पीटीआई का पायनियर हूँ। इमरान खान के ज़ाती दोस्त हैं, एच सोनियन है, इमरान खान के क्लास फेलो रहे सिंध कॉलेज लाहौर में, उनकी वर्थ अपनी है, नौशेरा में खासकर उनका आबाई हल्का है, लेकिन उनके एक भाई और एक भतीजा दोनों उनके मुखालिफ थे। अब वो पीपल्स पार्टी में चले गए। अब पीटीआई जो है उसके साथ जो 9 मई के बाद वाकयात हुए, मोस्टली गिरफ्तार हो गए और जो बाकी बचे वो रुपोश हो गए। रुपोश होने और गिरफ्तार होने के बाद एक केविटी, एक खला पैदा हुआ। उस खला को पूरा करने के लिए अमीर मुकाम जो सूबाई सदर हैं मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया और पूरे खैबर में, साथ वो भी गई हैं मैडम भी, मरियम नवाज भी, उन्होंने जलसा भी किया और उन्होंने वहां जाके पीटीआई का जो खला था उसको पूरा करने के लिए मुस्लिम लीग नून को एंटर किया। और रिजल्ट क्या निकला कि अमीर मुकाम की सरबराही में पूरे खैबर पख्तूनख्वा के जितने अजला हैं, इंक्लूडिंग इंजमाम शुदा जो ये अजला है ना, मर्ज डिस्ट्रिक्ट, वहाँ से भी बड़ी तादाद में लोग मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाली जलसे में मीनार पाकिस्तान लाहौर आए। ये बहुत बड़ी कामयाबी थी मुस्लिम लीग नून की कि मुस्लिम लीग नून पहले सीटें वहाँ से लेती रही है और खासकर मालाकंड डिवीजन से। मालाकंड डिवीजन समेत पूरे खैबर में इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुस्लिम लीग नून अपने पाँव जमा रही है और उनके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी टारगेट किया हुआ खैबर पख्तूनख्वा को। बिलावल भुट्टो जरदारी 2-3 मरतबा जा चुके हैं, लेकिन इसमें दूसरी बात ये देखनी चाहिए कि महमूद खान और साबिक वज़ीर आला और परवेज़ खटक, उनके बाद मौलाना फजलुर रहमान के साथी, वो लोकल हैं सारे के सारे वहाँ। तो ये खासा अच्छा मुकाबला होने को जा रहा है। अगर इंतखाबी इत्तेहाद रिवाइव नहीं करता, पीडीएम पीपल्स पार्टी उसमें शामिल नहीं होती, तो मुस्लिम लीग नून जो है वो इंडिपेंडेंटली अपनी जगह बना लेगी, मतलब स्वे करने में कामयाब होती हमें दिखाई देगी। आज जो एक और अहम खबर आ रही है वो IMF के हवाले से बड़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं। वो ये है कि 2 नवंबर को IMF की टीम जो है वो पाकिस्तान को विजिट करेगी दूसरी किस्त के हवाले से। यहाँ पर सर से हम ये पूछेंगे कि दोबारा फिर से जो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स के हवाले से या जितनी वो सारी डिस्कशंस होंगी तवानाई के हवाले से, उनकी शराइत के हवाले से अगर उसे आम अल्फाज में कह ले, तो आपको लगता है कि डॉलर के इस्तेहकाम के बावजूद फिर महंगाई बढ़ने के चांसेस हैं? देखिए, IMF ने जो शराइत पेश की थी, नवा मिशन जब आया था, 9th मिशन, तो नवे इजलास की शराइत में जो उन्होंने हमें डिक्टेशन दी थी, उन शराइत को हमने मनोन तस्लीम कर लिया। ठीक। और ये सारी की सारी महंगाई जी, दूसरे नंबर पे डॉलर के कदर, ये सारी का सारा नतीजा जो था ना इजाफे, ये असल वही था, उसका नतीजा जी, ये सबब वही बना है जी। अब अगर IMF आ रही है तो फिर उनका एक नया दबाव हमें फेस करना पड़ेगा। उस नए दबाव में वो कुछ भी कह सकते हैं, यू नेवर नो। देखें, अब ये भी कहा जा रहा है कि ये जो इनखला है गैर मुल्कियों का जी, वो भी IMF के उस प्रेशर का एक हिस्सा है जी। अब IMF के पास प्रेशर टूल हैं, हमें उन्होंने कर्ज की दूसरी किस्त जो है वो देनी अपनी शराइत की ही रोशनी में है। सर यहाँ पर मैं ना एक आपसे बात पूछना चाहूँगी कि IMF के हवाले से ये बड़ी हमने खुद भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया और कहा भी जाता है कि उनकी शराइत जो है उसकी वजह से मुल्क दोबारा कर्जे से निकलने के काबिल हो ही नहीं सकता कि वो कर्जे से निकल जाए। हमारे पास कोई और राह नहीं है कि हम कहीं और से कोई मतलब कर्ज ले लें, उनको वापस कर दें, कोई दोस्ताना मुल्क। बेटा, ये किस्मा बदकिस्मती है, अलमिया है हमारा, ये एक विशिष्ट सर्कल है, एक ऐसा मनहूस चक्कर है कि हम इधर से निकल के फिर वापस इधर आए। सही। जिस जगह पे हम वापस इस वक्त मौजूद थे ना, आज IMF की वजह से वही हो रहा है, वहीं फिर आ जाते हैं। हम IMF से ना चश्मपोशी कर सकते, ना रूबगर्दानी कर सकते, ना बिटरे कर सकते। तीनों सूरतें ऐसी हैं, हमें IMF को तस्लीम करना पड़ेगा, वर्ल्ड बैंक की शराइत माननी पड़ेगी,
एशियन डेवलपमेंट बैंक की शराइत माननी पड़ेंगी। जहाँ कहीं हमने गैर मुल्की इक़्तिसादी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हैं उनका सहारा लिया है, वहाँ उसका रिजल्ट ये निकला है। लेकिन अगर आप ये कहें कि इफ़ देयर इज एनी अल्टरनेट, तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा मुतबादल मौजूद है कि जो हमें IMF के बगैर कोई और कर्जा दे दे। अच्छा, अब कर्ज उतारने के लिए भी हम कर्ज लेते हैं, यही मनुष्य चक्कर है। हाँ, कि हमने कर्ज उतारना है तो फिर एक नए इदारे से कर्ज लेके नई बार कर्ज लेके और वो पिछला उतारे। अगर नहीं उतारेंगे तो उस पे जो है वो बहुत बड़े पैमाने पे जो है ना वो सूद पड़ जाता है, वो हमें देना पड़ता है, पेनल्टी आ जाती है। अच्छा, फिर हम ये है कि उन आलमी मालियाती इदारों के मकरूज किस हद तक हैं, वो किसी को एक्चुअल सिचुएशन बताता नहीं है हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट। और उसके अलावा आज मैं थोड़ी सी देख रही तो उसमें ये पता चला कि हमने IMF से जो कर्जे दिए हैं उसमें 15% इससे भी ज्यादा बाज़ औक़ात उन्होंने हमें शरह सूद पे मनवाया है। हाँ, वो तो मैंने उनसे कहा कि उनकी हर बात तस्लीम करनी पड़ती है। अगर नहीं करेंगे तो कर्ज से इनकार कर देंगे, तो हम कर्ज तले भी दब रहे हैं और बोझ तले भी दब रहे हैं, दोनों काम। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, आज सरफराज भुट्टी ने एक पैगाम दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि जब उन्होंने गैर कानूनी लोगों के एक्सपल्शन की बात की है तो उसमें उन्होंने उस मैसेज को मिस इंटरप्रेट किया गया है। मीडिया के हवाले से ये बात ज़्यादातर कही जा रही थी। सर, आपसे ये पूछेंगे कि क्या वाकई में इसको मिस इंटरप्रेट किया गया था? देखिए, मीडिया ने अपने कहीं नहीं ये लिखा कि अफगानियों के खिलाफ ये सही। देखिए, आप पहले ये समझ लें अफगानिस्तान क्या है जी। अफगानिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा मुत्तसिल इलाके हैं जी जी, और जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट है खैबर पख्तूनख्वा के वो तो बिल्कुल एडजेसेंट है, साथ मिले हुए जुड़े हुए हैं, और दरमियान में एक फसील है, वो फसील भी ना होने के बराबर। जो उधर के लोग हैं उनकी इधर रिश्तेदारी है और इधर के लोग जो उनकी उधर रिश्तेदारी, इनकी आमदोरफ्त आम है, कारोबारी तिजारती मामलात आम है, और यहाँ की जो वफूद के तबादले हैं वो रैंडमली होते हैं। सुबह एक जाता है, शाम को वापस आ जाता है, दूसरा चला जाता है। ठीक, ट्रक कतार अंदर कतार जो है वो आ जा रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में हम अफगानिस्तान, देखिए हमने पनाह दी थी उनको, उनकी बस्तियां बनाई थी, उनके कारोबारी तिजारती मराकज़ कायम किए थे, हम उनसे इनकार नहीं कर सकते और ना छुटकारा फौरी हासिल किया जा सकता। ये ठीक है, लोग कह रहे हैं जी IMF का कोई दबाव भी हो, हमने गैर मुल्की मुकीम गैर कानूनी तौर पे जो है उनका बोझ कम करना है, तो उसमें मीडिया ने कहीं नहीं ये कहा, कोई मीडिया अपनी तरफ से नहीं कह रहा। तासुर बता दो क्यों बन रहा है, ये मीडिया ने कहीं नहीं कहा जी कि ये अफगानियों को बाहर निकाला जा रहा है। ऑपरेशन अफगानियों के खिलाफ नहीं है, हर किस्म के गैर मुल्की के खिलाफ है, और वो गैर मुल्की जो हैं वो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में अफगानी चूँकि ज़्यादा है, वहाँ ये महसूस हो रहा है कि हम उनके खिलाफ हम वहाँ के बॉर्डर बंद कर रहे हैं जी। लेकिन सिंध में इंडियंस हैं जी, सिंध में अफगानी भी हैं जी, लेकिन सिंध में बंगाली भी हैं। सर, ये आपका पॉइंट आ गया। यहाँ पर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम है कि हम उनको ट्रेस कर सकें जो इलीगली यहाँ पर रह रहे हैं? हाँ, 6 दिन बाकी रह गए हैं उनकी डेडलाइन में। इन 6 अय्याम में तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उससे पहले एक एक्सरसाइज चल रही है, एक एक्सरसाइज कर रही है वजारत दाखिला, वजारत खारजा, हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे, वो हर जगह जाके चेक कर रहे हैं। लेकिन अवाम का भी फर्ज है कि अगर मेरे हमसाये में एक रहता है कोई गैर मुल्की और गैर कानूनी तौर पे है, उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं है, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया को पता नहीं है, तो मेरा भी फर्ज है ना कि मैं बताऊँ। इसी तरह आपका भी, ये जाहिद साहब हमारे कैमरा मैन है, इनका भी फर्ज है कि ये भी बताएं कि जी वो मिठा साहब हैं हमारे DOP जो हैं, वो अगर उनके हमसाये में कोई शख्स रह रहा है तो ये कौम के साथ भी मुल्क के साथ भी जाती होगी कि अगर वो उसकी इत्तला नहीं देंगे कि जनाब ये क्या सूरत हाल है। अच्छा सर, बहुत शुक्रिया आपका। आज हमने नईम मुस्तफ़ा साहब से बड़े मुख्तलिफ मामलात पर बात की और उनका मौक़िफ़ भी आ गया। आखिर पे जो एक अहम बात वो ये है कि अगर आपके हमसाये में या कहीं भी कोई गैर कानूनी तौर पे लोग रह रहे हैं तो वो उसके बारे में आप अथॉरिटीज़ को इतला दें ताकि मुल्क को थोड़ा सा सेफ्टी की तरफ ले जाया जा सके। इसी के साथ साथ आपको ये भी कहूँगी कि आप कमेंट सेक्शन में भी इंगेजमेंट बनाए रखें कि किस तरीके से मुख्तलिफ मामलात को हम बेहतर तरीके से लेके जा सकते हैं। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।